वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। हम अपने 5 चैप्टर देख चुके हैं फ्रेंड, जो है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के। आज हम अपना छोटा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोविजन रिगार्डिंग सब टेनेंसी एंड अदर मैटर्स कंसर्निंग टेनेंसी। तो इसमें हमारा सेक्शन 25 है, सर्टन सब टेनेंट टू बिकम टेनेंट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। कुछ सब टेनेंट जो होते हैं वो टेनेंट बन जाते हैं, कैसे बनते हैं वो इस सेक्शन में बताया हुआ है फ्रेंड। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट of any premises is determined for any reason, any subtenant to whom premises or any part thereof has been lawfully sublet, मतलब टेनेंट ने उसके नीचे कोई और टेनेंट को रखा है और वो लॉफुल है, एंड सब टेनेंसी इज सबसिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और वेयर सब टेनेंसी इज परमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट में सब टेनेंसी अलग करके रखी है लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को, बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टेनेंट, सच सब टेनेंट शैल सब्जेक्ट टू, वैसे सब टेनेंट क्या होगा, सब्जेक्ट टू the provision of this act be deemed to become a tenant of his landlord on the same term and condition as he would have held from the tenant if the tenancy had continued। अगर समझो टेनेंट ने उसके नीचे सब टेनेंट रखा है तो वो लैंडलॉर्ड को जो सब टेनेंट है वो भी सेम होगा, डीम टेनेंट होगा लैंडलॉर्ड के लिए, क्योंकि वो का एग्रीमेंट में करके कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, या फिर लॉफुल, इसमें लैंडलॉर्ड को पता है और उसके बाद टेनेंट ने सब टेनेंट रखा है, तो वो दोनों भी जो टेनेंट है डीम टेनेंट हो जाएंगे, इसके लिए लैंडलॉर्ड के लिए। और डीम टेनेंट इसको बोला जाता है फ्रेंड, डीम टेनेंट बहुत जगह आया है। ओके, डीम टेनेंट बिकम द टेनेंट। देन है हमारा सेक्शन 26, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेनेंट नॉट टू लेट सब टेनेंट और ट्रांसफर और टू गिव ऑन लाइसेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का, उसके बाद क्या कर सकता है, वो सबलेट नहीं कर सकता है किसी तीसरे को, दूसरे को क्या कर सकता है, सब टेनेंट बना नहीं सकता। अगर बनाता है तो वो इलीगल होगा फ्रेंड। अंडर सेक्शन 26, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to any contract of the contrary, it shall not be lawful for any tenant to let subtenant on give on license whole or any property of the premises let to him, or to assign or transfer in any other manner his interest therein। ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो करता है तो lawful है। Provided that state government may by notification in the official gazette permit in the any area the transfer of interest in premises held under such lease or class of lease, says any premises or class of premises other than those let for business, trade, storage to such extent as may be specified in the notification। other than स्टेट गवर्नमेंट क्या करा सकती है, लेकिन अलाउ करा सकती है इस तरह से कि सब टेनेंसी, बट बिजनेस, ट्रेड और स्टोरेज की जगह को छोड़कर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 27, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अलॉटी to become tenant of premises requisition or continue under requisition। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो अलॉटी रखते हैं वो कब होती है टेनेंट, तो ये बताता है सेक्शन 27। On the 7 December 1996, that is the date of coming into force of the Bombay Rent Hotel and Lodging House Rent Control, Bombay Land Requisition and Bombay Government Premises Eviction Amendment Act 1996, hereinafter in this section referred to as the said date, the state government in respect of the premises requisition or continue under requisition and allotted to government allottee referred to in subclause A of clause 2 of section 7, and the state government allottee in respect of the premises requisition or continued under requisition and allotted to him as referred in subclause B of clause 2 of section 7। हमने सेक्शन 7 में जो देखा था ना फ्रेंड, वही। shall notwithstanding anything contained in this act or in Bombay Land Requisition Act or in any other law for time being in force or in any contract or in any judgment, decree or order in court passed by any court after 11th June 1996 or in any order of eviction issued by competent authority or by appellate authority under the Bombay Land Requisition Act be deemed to have become for the purpose of this act the tenant of the landlord, and such premises shall be deemed to have been let by the landlord to state government or as the case may be to such government allottee, or on payment of rent and permitted increases equal to the amount of compensation payable in respect of the premises immediately before the said date। गवर्नमेंट जो जगह रिक्वायर करती है ना वो बता रहा है फ्रेंड इसमें से दूसरा क्वेश्चन। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन और एनी अदर प्रोविजन
ऑफ दिस एक्ट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, इस सेक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, क्या नहीं करता है, द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड इंक्लूडिंग द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड इंक्लूडिंग हिज राइट टू रिकवर पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस फ्रॉम सच टेनेंट ऑन एनी अदर ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 16। सेक्शन 16 में हमने देखा था पोजेशन के लैंडलॉर्ड के जो राइट है पोजेशन लेने के, एक्वायर करने के, वो इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं इन एनी अदर सेक्शन। इफेक्ट क्या नहीं कर सकता है, कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। किसको करता है, लैंडलॉर्ड इंक्लूड कौन होना चाहिए, रिकवर पोजेशन 16 के अंदर जो बताया हुआ है उस ग्राउंड पे वो नहीं कर सकता है। द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड और सच टेनेंट टू अप्लाई द कोड फॉर फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। यहाँ पर क्या है फ्रेंड, लैंडलॉर्ड का भी राइट है और टेनेंट का भी राइट है, बोथ ये दोनों भी पार्टी का क्या है, ये दोनों भी पार्टी का राइट है क्या करने का, एप्लीकेशन कर सकते हैं रेट फिक्सेशन करने का। किसको अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट को। यहाँ कोर्ट वापस से कोर्ट आ गया, अगर नोटिस किया होगा फ्रेंड आपने तो 22 सेक्शन 23 सेक्शन 24 में सिर्फ कंपिटेंट अथॉरिटी दे रखी है फ्रेंड, अदरवाइज जो है हमारे कोर्ट ही डिसाइड करता है फिक्सेशन स्टैंडर्ड रेट का जो होता है वो वाला। एंड परमिटेड इन दिस एक्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द फैक्ट दैट द अमाउंट ऑफ रेंट एंड परमिटेड इंक्रीजेस if any to be paid by such tenant to the landlord is determined under subsection 1। तो दोनों को अधिकार है एप्लीकेशन करने का कोर्ट में रेट फिक्स करने का या परमिटेड इंक्रीज केसेस के लिए बोलने का। द ऑपरेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द अदर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टेनेंसी, इस टेनेंसी के रिगार्ड में एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 28, इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस। अब टेनेंट को दे रखा है रेंट पे, तो प्रीमाइसेस को लैंडलॉर्ड को इंस्पेक्ट करने का अधिकार है कि नहीं, तो वो भी लिख के रखना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड को क्या है अधिकार प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करने का, लेकिन शैल है यहाँ पे मैंडेटरी क्या है, लैंडलॉर्ड को अगर प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करना है तो वो इंटाइटल है इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस लेटर गिवन ऑन लाइसेंस एट द रीजनेबल टाइम। किसी भी टाइम पर नहीं जाएगा, कब जाएगा, रीजनेबल टाइम पे जाना चाहिए, और कब, आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस। उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगी टेनेंट को कि मैं इंस्पेक्शन के लिए आ रहा हूँ, और रीजनेबल टाइम में जाना पड़ेगा, रात के 2 बजे नहीं जा सकता है वो। रीजनेबल क्या आएगा, दिन का जो ऑफिशियल टाइम होता है वो टाइम जो होगा वो रीजनेबल होगा। प्रायर नोटिस देने के बाद लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, टेनेंट के पास या फिर वो ऑक्यूपायर के पास जाके इंस्पेक्ट कर सकता है वो प्रीमाइसेस को, क्या कुछ गलत नुकसान अच्छा बुरा तो नहीं किया उसके प्रीमाइसेस में वो। सेक्शन 29, लैंडलॉर्ड नॉट टू कट ऑफ और विदहोल्ड इसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज। लैंडलॉर्ड क्या नहीं कर सकता, वो खाली नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या करे, पानी बिल कार्ड नहीं भरे, पानी कट कर दिए, लाइट बिल नहीं भरे, लाइट बिल कर रख ले लिए, ऐसा वो नहीं कर सकता। ऐसा करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और टेनेंट को क्या राइट रहेगा, ये बताता है सेक्शन 29। नो लैंडलॉर्ड इधर हिमसेल्फ और थ्रू एनी पर्सन एक्टिंग और परपर्टिंग टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। मतलब क्या, पैसे नहीं भरे तो लाइट मीटर वालों ने लाइट काट दिए, तो उसके बिहाफ में काम हुआ ना, ये पैसे नहीं भरने की वजह से, उसके एक्ट की वजह से कोई काम हुआ, या वो खुद वायर काट देता है जाके, तो ये बोथ भी कंडीशन ऐसा नहीं करना चाहिए। शैल है मैंडेटरी है लैंडलॉर्ड पे। विदाउट जस्ट और सफिशिएंट कॉज कट ऑफ विदहोल्ड एनी इसेंशियल सप्लाई और सर्विस इंजॉय बाय द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस लेट टू हिम। ऐसा नहीं करना चाहिए लैंडलॉर्ड को, ये बताता है सेक्शन 29। अ टेनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीमाइसेस मे, इफ द लैंडलॉर्ड हैज़ contravened the provision of subsection 1, make an application to the court for direction to restore such supply or service। ऐसा नहीं करना चाहिए लैंडलॉर्ड को, लेकिन अगर फिर भी लैंडलॉर्ड ऐसा करता है, मना करने के मतलब इसमें प्रोविजन में दे रखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कॉन्ट्रावेंड करता है सेक्शन 29 के सब क्लॉज 1 को, तब क्या होगा, फिर एप्लीकेशन करना पड़ेगा टेनेंट को कोर्ट के अंदर वो सप्लाई जो है रिस्टोर करके देने के लिए। Having regard to the circumstances of particular case, the court may, if it is satisfied, court satisfied होता है that it is necessary to make interim order, कोर्ट इसमें इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि नेसेसरी है। मेक सच ऑर्डर डायरेक्टिंग द लैंडलॉर्ड, क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कोर्ट लैंडलॉर्ड को टू रिस्टोर इसेंशियल सप्लाईज, जो भी इसेंशियल सप्लाई है वो वापस कर दो, लैंडलॉर्ड को रिस्टोर करके दो, बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर, जो ऑर्डर में डेट दे रखी है उसके पहले, बिफोर गिविंग नोटिस टू द लैंडलॉर्ड of the inquiry to be made in the application under subsection 3 or during the pendency of such inquiry. On the failure of landlord to comply with such interim order of the court, the landlord shall be liable to same penalty as is provided for in subsection 4। लैंडलॉर्ड को पेनल्टी भी लगाई जाएंगी इसके अंदर फ्रेंड, अगर वो ऐसा नहीं करता है, फेल हो जाता है, जो भी ऑर्डर कोर्ट ने दिया है
ऑर्डर के बाद भी लैंडलॉर्ड फेल होता है सप्लाई प्रोवाइड करने को इसेंशियल टेनेंट को, तो वो उसको पेनल्टी भी लगाई जाएगी फ्रेंड, जो हमारे सब क्लास 4 में बोली हुई है, सब सेक्शन 4 में बोली हुई है। इन द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइंड्स that the tenant has been enjoyment of the essential supply service and that it was cut off or withheld by the landlord without just and sufficient cause, the court shall mandatory make an order directing landlord to restore such supply or service before the date of specified in the order। वो डेट जो ऑर्डर की दे रखी है उसके पहले वो जो सप्लाई जो नेसेसरी थे लैंडलॉर्ड को बोलता है कोर्ट की वापस करो। एनी लैंडलॉर्ड वो फेल्स, और लैंडलॉर्ड ऐसा ऑर्डर आने के बाद भी फेल होता है वो ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए, टू रिस्टोर सच सप्लाई सर्विस बिफोर द डेट सो स्पेसिफाइड, जो ऑर्डर में जो डेट दे रखी है वो डेट तक नहीं करता है, शल फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज देयर आफ्टर बी लाइबल अपॉन फर्दर डायरेक्शन बाय द कोर्ट टू दैट इफेक्ट टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़। वो ऑर्डर जब किया है कोर्ट ने, वो ऑर्डर के डेट तक अगर वो नहीं करता है तो वो ऑर्डर के डेट के बाद हर दिन के लैंडलॉर्ड को 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, फाइन लगेगा। Any landlord who contravene the provision of subsection 1 shall on conviction punishable with imprisonment term which may extend to 3 months। अगर वो ऐसा फेल हो जाता है लैंडलॉर्ड सप्लाई उसको देने के लिए एसेंशियल और कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी नहीं देता है तो कोर्ट क्या करता है उस पर फाइन इम्पोज करता है पर डे का 100 रुपीज़, और लैंडलॉर्ड को क्या करता है पनिशमेंट भी देता है, कितनी 3 मंथ फाइन होता है, 3 मंथ की पनिशमेंट होती है, वो एक्सटेंड कितना होती है फाइन भी होती है या फिर फाइन हो सकती है, फाइन कितनी है 1000 रुपीज़ या फिर बोथ हो सकता है, बोथ। An application under this section may be made jointly by all or any of the tenant of the premises situated in the same building। 4-5 लोग टेनेंट होंगे एक बिल्डिंग में तो जॉइंटली वो सब मिलके कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, इसेंशियल सप्लाईज और सर्विस इंक्लूड, इसेंशियल सप्लाईज क्या है और यह सर्विस क्या है इंक्लूड क्या करती है, जैसे कि वाटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इन पैसेज एंड स्टेयरकेस, लिफ्ट, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, ये जो है वो इसेंशियल सप्लाई में आएंगे। विथ होल्डिंग एनी इसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज शैल इंक्लूड क्या हो सकता है, एक्ट और ओमिशन एट्रीब्यूटेबल टू द लैंडलॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ विच द इसेंशियल सप्लाई और सर्विस इज कट ऑफ बाय द म्यूनसिपल अथॉरिटी और एनी अदर कंपेटेंट अथॉरिटी। जैसे वो पेड नहीं किया, कुछ किया, विदहोल्ड करना मतलब तो कट हो गया तो विदहोल्ड हुआ ना, तब तक भरने के बाद तो वापस आ जाएगी, तो वो विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 to 6 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स वेयर द टेनेंट जब टेनेंट क्या करता है वो हैज़ बीन enjoyment of any essential supply or service and the landlord has withheld the sum, विद रुका देता है सप्लाई प्रोवाइड करने का जो इसेंशियल है नेसेसरी है टेनेंट को, वो डिज़ायर्स टू हैव एट हिज ओन कॉस्ट एनी अदर इसेंशियल सप्लाई और सर्विस फॉर द प्रीमाइसेस इन हिज ऑक्यूपेशन, डिज़ायर है कि वो उसके ओन कॉस्ट से इसेंशियल सप्लाई लेना चाहता है तो क्या कर सकता है टेनेंट में कैन अप्लाई टू म्यूनसिपल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अथॉरिटी क्या बोलेगा वो, या किसी भी अदर अथॉरिटी को एप्लीकेशन करेगा अगर वो चाहता है कि खुद के कॉस्ट के ऊपर वो अपने इसेंशियल सप्लाई वापस कर ले, तो ऑथोराइज इन बिहाज फॉर द प्रीमाइसेस और फॉर सप्लायर ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, किसके लिए एप्लीकेशन करेगा कि वो सर्विसेज म्यूनसिपल अथॉरिटी को बोलेगा कि वो सर्विसेज मुझे देने में आनी चाहिए, एंड इट शैल बी लॉफुल, और ये लॉफुल होगा फॉर दैट अथॉरिटी टू ग्रांट परमिशन, कि इसेंशियल सप्लाई वो अथॉरिटी को नेसेसरी होगा कि वो देना चाहिए टेनेंट को भी, फॉर सप्लाई ऑफ सच इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज सप्लाइड फॉर विदाउट इंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड बाय सच टेनेंट। वो म्यूनसिपल अथॉरिटी ये नहीं बोलेगी कि तुम क्या करो पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ लैंडलॉर्ड से, कि तो अगर लैंडलॉर्ड को देना ही होता नो ऑब्जेक्शन तो खुद ही कर देता ना, वो नहीं कर रहा है इसके वजह से वो नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्यूनसिपल अथॉरिटी मांगे ही नहीं और उनको जो है इसेंशियल लॉफुली है कि वो ग्रांट कर देगी, परमिशन दे देगी। सेक्शन 30 कन्वर्जन ऑफ रेसिडेंशियल इनटू कमर्शियल प्रीमाइसेस प्रोहिबिटेड, रहने के लिए जगह दी है उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया वहाँ पे, ये प्रोहिबिटेड है, लॉ के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बताता है हमारा सेक्शन 30। अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट यूज और परमिट टू बी यूज for commercial purpose any premises which on the date of the commencement of this act were used for residential purpose। लैंडलॉर्ड को क्या करना चाहिए, किसी भी जगह को कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं देना चाहिए जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है ये एक्ट आने के बाद से। एनी लैंडलॉर्ड
वो कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन, लैंडलॉर्ड क्या करता है, वो रेसिडेंशियल पर्पज से फिर भी कॉन्ट्रावेंट करता है ये प्रोविजन को, और क्या करता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए रेंट पे दे देता है, तो उसको कन्विक्शन होगी और पनिशेबल होगा, विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, और उसको फाइन भी लगेगी विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ और विथ बोथ। कि तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन है, क्या बोलता है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है कि जो रेसिडेंशियल पर्पज़ है उसको नहीं दे सकते आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए। फिर भी अगर लैंडलॉर्ड दे देता है पैसे कमाने के लिए तो क्या होगा, उसको फ़ाइन, यहाँ पर देखा होगा हमने फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा फ़ाइन जो है हमारे सेक्शन 30 में लगता है, 6 मंथ की पनिशमेंट होती है सबसे ज़्यादा है जो, और जो 10,000 रुपीज़ का जो है फ़ाइन लगता है या बोझ होता है फ्रेंड। इस पर सब सेक्शन में हमने देखा था कि 5,000 तक फ़ाइन था सिर्फ, इसमें जो पहला सेक्शन है सबसे ज़्यादा फ़ाइन है कि तो ये जो रूल है उसको कॉन्ट्रावेंट कर रहा है। देन है हमारा सेक्शन 31, गिविंग रिसिप्ट फॉर एनी अमाउंट रिसीव्ड कंपलसरी। जो रिसीव कर रहा है टेनेंट से लैंडलॉर्ड, उसकी क्या करना पड़ेगी, रिसिप्ट देना पड़ेगी टेनेंट को, लैंडलॉर्ड को, कंपलसरी वो भी। एवरी लैंडलॉर्ड शल है, देखिए फ्रेंड मैंडेटरी है, शल गिव अ रिटर्न रिसिप्ट देना पड़ेंगे फॉर एनी अमाउंट एट द टाइम व्हेन सच अमाउंट इज रिसीव बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीमाइसेस इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब रिसीव्ड बाय हिम। जो टेनेंट देता है लैंडलॉर्ड को अमाउंट, उसकी रिसिप्ट देना लैंडलॉर्ड को नेसेसरी है इन शॉर्ट। एवरी लैंडलॉर्ड shall without charging any consideration issue the rent received in respect of the premises let out to the deceased tenant in the name of the family member of referred to in subclause D of clause 15 of section 7। अगर डेथ हो गई होंगी टेनेंट की तो फैमिली मेम्बर की जो नाम है उसके नाम पे भी वो रिसिप्ट दे सकता है, कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है लैंडलॉर्ड की उसके लिए। एनी लैंडलॉर्ड और पर्सन हु फेल्स टू गिव रिटर्न रिसिप्ट, लैंडलॉर्ड क्या करता है, फेल्स हो जाता है रिटर्न रिसिप्ट देने के लिए, फॉर एनी अमाउंट रिसीव बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीमाइसेस शल ऑन कन्विक्शन, तो उसको फिर से लैंडलॉर्ड को क्या होगी फ्रेंड, यहाँ पे फिर से लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट होगी अगर वो रिसिप्ट नहीं देता है तो क्या होगा, पनिशेबल विथ फाइन। यहाँ पे उसको सिर्फ फाइन होगी बिकॉज क्या कर रहा है वो सिर्फ रिसिप्ट नहीं दे रहा है, विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़ फॉर ईच डे डिफ़ॉल्ट, मगर ईच डे का डिफ़ॉल्ट के लिए इसको क्या होगा, पर डे 100 रुपीज़ जो है उसको फाइन लगेगा फ्रेंड, ऐसा अगर वो कर रहा है तो। देन है हमारा सेक्शन 32, रिकवरी ऑफ रेंट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। तो किस कैलेंडर के हिसाब से होना चाहिए रिकवरी, हमारे लिमिटेशन एक्ट में जिस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर बता रखा है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या बता रखा है, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से जो है वो रिकवरी होगी रेंट की। Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any contract, custom or local uses to the contrary, rent payable by the month or year or portion of year shall be recovered according to the British calendar। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है फ्रेंड, ये भी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में रेंट जो होता है रिकवर किस कैलेंडर के जैसा किया जाता है, ग्रेगोरियन, ब्रिटिश या फिर कोई अदर नाम होगा तो उसमें से क्या बताना पड़ेगा हमको, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से रिकवरी होती है। द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है द मैनर इन विच रेंट रिकवरेबल अकॉर्डिंग टू द एनी अदर कैलेंडर बिफोर द कमिंग इन टू ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कैलकुलेटेड एंड चार्ज इन द टर्म ऑफ द ब्रिटिश कैलेंडर। फाइनली स्टेट का कायदा है तो स्टेट को राइट है कि वो किसी भी तरह से रेंट को रिकवर करने के लिए बोल सकती है किसी भी कैलेंडर के हिसाब से। चलिए फ्रेंड, आज के लिए हम अपना ये जो सेक्शन है हमारे जो ख़त्म किया है हमने चैप्टर 6, आज के लिए यहीं पर हम समअप करते हैं, आज के लिए हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने देखेंगे चैप्टर 7 और जल्दी ही हम अपना महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऐप खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट टू माई चैनल टू encourage me to making more videos. Bye bye.